राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा कि रक्तदान हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में राजभवन के सांस्कृतिक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने भाग लिया। राज्यपाल तमिलसाई ने कहा कि रक्तदान दिवस को एक त्योहार के रूप में आयोजित करना चाहिए। राज्यपाल ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि तेलंगाना राज्य में तलसेमिया पीड़ितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रक्तहीनता बढ़ने की पहचान कर उसका सही उपचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तहीनता बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इस मामले में सभी लोगों को सतर्क रहने का राज्यपाल ने संदेश दिया। Without knowing to whom they are serving, and I congratulate each one of them, and I appeal the Red Cross, each and 33 districts, all the Red Cross, because some of the Red Cross officers are provided with good storage facilities, and I congratulate recently in the Anagonda district they have upgraded the storage facility. Like that each and every office should have a storage facility, and I really congratulate the police officials and the army personnel, because during the pandemic we didn't get blood because we were unable to organize mass blood donation camps. So we appealed the army officials and the police officials to donate blood during the pandemic period, and because of them we could save the thalassemia patients. So I really thank the police fraternity and the army personnel for doing a very great job during the pandemic period. And I have seen donors saying 140 times, 150 times, they are very proud that we have donated our blood so many times. हैदराबाद के हाईटेक सिटी में ओपन ब्लू इनोवेशन केंद्र का उद्योग मंत्री केटीआर ने शुभारंभ किया। जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में इस इनोवेशन केंद्र का गठन किया गया। इस अवसर पर मंत्री केटीआर ने कहा कि राज्य में रोजगार अवसर उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस अवसर पर मंत्री ने राज्य में उत्पादन यूनिट स्थापित करने का आग्रह किया, तो इसके लिए पुलिंग ने स्वीकृति प्रदान की। देश में तेज रफ्तार के साथ विकास कर रहे राज्यों में हैदराबाद सबसे आगे खड़ा हो रहा है, कहकर मंत्री ने शहर की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोडक्ट के महाप्रबंधक दवे पुलिंग भी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोडक्ट के महाप्रबंधक दवे पुलिंग भी उपस्थित हुए। Telling me how you started the company, how you founded it, and how it grew and became what it has. So compliments on all the success, compliments on becoming a grandfather as well. And just also wanted to quickly share. We had a very exciting discussion. You know, Dave and the entire team was briefing us on the large ambitions for India and how they'd want to do more in India, and particularly in Hyderabad and Telangana. So we were offering him some opportunities. We were telling him how Telangana is in the process of building the world's largest innovation campus, where T-Hub, T-Works and Image Tower, all of them would be housed in a single location, all would be co-located. So maybe Johnson Controls could participate in that. We were also telling him about how Telangana has built a world-class police command control center, which is almost on the verge of getting unveiled, and again, potentially Johnson Controls could play a role, or get a piece of that and see how we could work together. The third thing I also mentioned to him is the new administrative nerve center, the new secretariat building that is also coming up in the next few months, and how Johnson Controls again could possibly work with us and see how we could help you there as well. But one of the things I was also mentioning to Dave is India is a large market. India as a country is about 1.4 billion people with a large affluent middle class of more than 400 million people, and India is a country that is growing and growing fast. What we ought to be looking at is also the larger, in the larger context of India, not just Hyderabad and Telangana, but we also need to start looking at opportunities across various Indian states, various Indian cities, all the business opportunities that is. जुबली हिल्स कब मामले में पुलिस ने जांच की कार्रवाई तेज कर दी है। यहां गत 5 दिनों से नाबालिगों के साथ पुलिस पूछताछ कर रही है।
इन सभी से पूछताछ की कार्रवाई आज समाप्त हो जाएगी। इस मामले से संबंधित 2 नाबालिगों से गत 4 दिन से पूछताछ की जा रही है। इन दोनों की पूछताछ कल समाप्त हो जाएगी। इसी पूछताछ के अंतर्गत इन 5 आरोपियों को मिलकर पुलिस पूछताछ करेगी, ऐसी जानकारी मिली। इस पूछताछ के अंतर्गत सभी नाबालिगों को करीब बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। अपराध किस प्रकार से हुआ, इस विषय पर पुलिस द्वारा पूछताछ करने की संभावनाएं नजर आ रही है। इस पूछताछ में नाबालिगों द्वारा दी जा रही जानकारियों को स्टेटमेंट के रूप में पुलिस दर्ज कर रही है। इसके पूर्व ही इस मामले से संबंधित तकनीकी, मेडिकल, साइंटिफिक कुछ लोगों से गवाही के स्टेटमेंट भी पुलिस ने दर्ज किए हैं। संपूर्ण तेलंगाना राज्य में सभी स्कूल आरंभ हो गए हैं, लेकिन विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें तथा यूनिफॉर्म्स न होने से विद्यार्थी खाली तकलीफों का सामना कर रहे हैं। नई पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म के लिए लगभग 1 महीने तक इंतजार करने की परिस्थितियां उत्पन्न होने से राज्य की टीआरएस पार्टी सरकार पर गंभीर रूप से आलोचना की जा रही है। राज्य सरकार के संबंध में यह आलोचना सुनाई पड़ रही है कि पाठ्य पुस्तकों की छपाई तथा यूनिफॉर्म तैयारी के आदेश जारी करने में सरकार ने थोड़ी लापरवाही की है। इससे विद्यार्थियों का समय बर्बाद हुआ है। इन परिस्थितियों के चलते विद्यार्थी खाली बैग तथा पुराने यूनिफॉर्म पर ही विद्यालय में पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। इस विषय में अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि पुराने पाठ्य पुस्तकों से ही काम चलाया जाए। नई पुस्तकें आने के पश्चात वह विद्यार्थियों में वितरित की जाएंगी। यह ऐसा हो तो कुछ विद्यालयों में निचली कक्षा के विषय ही विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इसी वर्ष से राज्य में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा भी आरंभ की जा रही है। इसी नेपथ्य में लगभग 26 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों तथा यूनिफॉर्म सरकार द्वारा मुहैया कराने की आवश्यकता है। हैदराबाद नगर के आसिफ नगर में कल देर रात तक कुछ युवाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जिर्रा क्षेत्र के रॉयल सी होटल के समीप गांजे के नशे में धुत युवकों ने वहां हलचल मचाते हुए बीच सड़क पर वाहन चालकों को काफी परेशान कर दिया। गांजे के नशे में धुत युवकों के इस उत्पात को देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। इस दौरान पुलिस ने अजय नामक युवक को हिरासत में लेने का प्रयास किया तो गांजे के नशे में धुत युवकों ने पुलिस वाहन में सवार होकर हंगामा मचा दिया। इन नशेड़ियों ने पुलिस वाहन के साथ साथ अन्य वाहनों के शीशे तोड़ दिए। इन युवाओं ने पुलिस वाहन पर चढ़कर भी काफी हंगामा मचाया। इन नशेड़ियों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से हिरासत में लेकर उनकी खूब धुलाई की। इसी क्रम में है कुछ नशेड़ी बचकर भागने में सफल हो गए। इसी दौरान पुलिस के हाथ लगे अजय नामक युवक को पुलिस ऑफिस नगर थाने भेजकर उससे पूछताछ कर रही है। हैदराबाद शहर में इस बीच महिलाओं पर हो रहे घटनाओं के मद्देनजर सत्ताधारी पार्टी पर विपक्षी दलों के नेता अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इस क्रम से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कई टिप्पणियां की। पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर हो हल्ला मचाए और लोगों को परेशान किए नशेड़ियों के वीडियो को रेवंत रेड्डी ने सामाजिक माध्यमों पर शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि यह दृश्य अपने हैदराबाद शहर का ही है। हैदराबाद के आसिफ नगर में नशेड़ियों द्वारा पुलिस के वाहन पर चढ़कर जो वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस वाहन के शीशे फोड़ रहे थे, इन सब दृश्यों को देखने से ऐसा लगता है कि अब हैदराबाद शहर में शराबी पुलिस के वाहन तो क्या हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि यह लोग पुलिस के सामने ही पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर उसे नुकसान पहुंचाना यह बहुत ही शोचनीय बात है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब शहर में शराबी इस पद पर पहुंच गए हैं तो अब जनता का फर्ज बनता है कि इसका विरोध करे या शहर में, राज्य में इसी प्रकार की सरकार का काम चलाने दे। उन्होंने नागरिकों से इस विषय में सोच विचार कर निर्णय लेने का आग्रह किया। वनस्थलीपुरम सुषमा थिएटर के समीप सड़क पर लगे ट्रैफिक सिग्नल के पास हेरिटेज दूध की लारी ने उत्पत्ति मचा दिया। इस गाड़ी ने सामने से आ रहे 3 दोपहिए वाहन को टक्कर मार दिया। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा अन्य कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हेरिटेज दूध की आपूर्ति करने वाली लॉरी
3 बाइकों को टक्कर मारने के बाद नहीं रुकी। वह पास ही एक चाय की दुकान में तथा पान की दुकान में घुस पड़ी। इस हादसे में चाय तथा पान की दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पहुंची पुलिस ने इस दुर्घटना का कारण बने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि लॉरी के ब्रेक फेल होने के कारण ही यह हादसा हुआ है। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान नलगोंडा निवासी सुरेश तथा जयलक्ष्मी के रूप में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संगारेड्डी जिले के जीनाराम मंडल के IDA बोलारम में गांजे की बिक्री कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद कृष्णा रेड्डी के तत्वावधान में पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 20 किलो गांजा बरामद कर लिया। इसके पश्चात पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। गांजे की बिक्री कर रहे लोगों की पहचान उड़ीसा निवासी तुलाराम तथा प्रेम के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि यह दोनों आरोपी उड़ीसा के निवासी है। फोटो बाहर से जिसको आने देगा कर्चिप निकाल रहे, मुंह से कर्चिप निकाल नीचे हाथ कर, इधर देख। विकेट बे वो 1 किलो पैकेट है, 2 किलो पैकेट लाया तुम लोग, कहाँ है वो? 2 किलो पैकेट लाए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के अध्यक्ष परीक्षण रावल ने बताया कि गूगल संस्था में चल रहे जातिवाद का वह कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं। गूगल संस्था में चल रहे जातिवाद के विरोध में परीक्षण रावल ने टैंकबंड स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास धरना आंदोलन आयोजित किया। उन्होंने मांग की कि गूगल के CEO पिचैया को तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने जातिवाद के नाम पर गूगल संस्था में काम करते हुए अपनी सेवाएं छोड़ी। तनुजा गुप्ता को तत्काल रोजगार पर लेने की मांग की। उन्होंने बताया कि वह इस विषय को लेकर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि वह इस विषय को लेकर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की चेतावनी दी। उन्होंने किसी मौके पर जातिवादी का नाम लेकर काम करने वाली संस्थाओं को अपने विचारधारा में सुधार लाने की और जातिवादी को भूल जाने की चेतावनी दी। भीम आर्मी రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వనం మహేంద్ర గారి పిలుపు మేరకు ట్యాంక్ బండ్లో ఉన్నటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర భీమ్ ఆర్మీ తెలంగాణ నిరసన ర్యాలీ జరుపుతున్నాము। దీనికి కారణం ఏంటంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కుల వ్యవస్థ, నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ, హిందూ మతోన్మాదులు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క భారతదేశంలో మరి ఈ వ్యవస్థని ఈ భారతదేశానికే పరిమితం కాకుండా ఇతర దేశాలు కూడా పాకించి అక్కడ కూడా కుల వివక్షత చూపిస్తున్నటువంటి ఈ గూగుల్ CEO ఈ సుందర్ పిచ్చై ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని ఇమ్మీడియట్లీగా మరి ఆ CEO పదవి నుంచి రిమూవ్ చేసి కొత్త వాళ్ళని నియమించవలసిందిగా భీమ్ ఆర్మీ డిమాండ్ చేస్తుంది। అలాగే సౌందర్య రాజన్ అనే ఒక మహిళను మరి ఆమె దళిత మహిళ, ఆమెని గూగుల్ నుంచి ఉద్యోగాన్ని రిమూవ్ చేసినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి। అవి చాలా దారుణమైన విషయాలు। మరి ఎమ్మటే ఆ సుందర్ ఆ మేడాన్ని ఆ గూగుల్ CEO గారు మళ్ళీ ఉద్యోగంలోకి తీసుకొని వారిని మళ్ళీ అక్కడే వారికి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని। కుల వివక్షత ఉండొద్దు, మరి గూగుల్లో ఇలాంటి కుల వివక్షత ఉన్నది కారణంగా మరి అక్కడ సీనియర్ మేనేజర్ అయినటువంటి తనుజా గుప్తా రాజీనామా చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి చర్చకు దారితీసిన అంశం మరి ఈ గూగుల్లోని బ్రాహ్మణికల్ వ్యవస్థ, బ్రాహ్మణికల్ ఉద్యోగస్తులు ఇంతమంది ఒక SC కులానికి సంబంధించినటువంటి సౌందర్ రాజన్ని వ్యతిరేకించడం చాలా శోచనీయం, అవమానం అని భీమ్ ఆర్మీ తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ నుంచి మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। మా డిమాండ్లు ఏంటంటే గూగుల్ CEO వెంటనే రాజీనామా చేయాలి। అదేవిధంగా గూగుల్లోని మరి తనుజా గుప్తాని వెంటనే మరి ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవాలని భీమ్ ఆర్మీ తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా మరి
బీమార్మీ స్పెషల్ జోన్స్లో స్పెషల్ ఎకనామికల్ జోన్స్ అంటే ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, బీసీలకు, మైనార్టీలకు, మరి కులాలకు, మతాలకు సంబంధం లేకుండా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలను పెట్టడం కోసం సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో మరి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఉంచి तेलंगाना राज्य में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। ताज़े तौर पर बीते 24 घंटों में 13,015 लोग की कोरोना जांच की गई, तो उनमें से 126 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हैदराबाद जिले में सबसे अधिक 75 नए मामले दर्ज हुए। इसी प्रकार रंगारेड्डी जिले में 27, मेडचल मलकाजगिरी जिले में 8 नए मामलों की पहचान की गई। इसी समय में कोरोना ने 49 लोग स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे निर्णयात्मक तीसरे टी20 मैच के लिए भारत तैयार हो रहा है। टी20 मैच वाले इस श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका पहले से ही 2-0 से बढ़त हासिल किया हुआ है। इन परिस्थितियों में यह तीसरा मैच भारत के लिए चुनौती बन गया है। विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में VDCA क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच होने वाला है। इस स्टेडियम में अब तक 2 मैच खेले गए। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए मैच में टीम इंडिया हार गई, लेकिन दूसरे मैच में श्रीलंका पर जीत हासिल की। यह दोनों ही स्कोरिंग मैच है। इतना ही नहीं, इस मैच में पीछा करने वाले टीम ही जीत हासिल किए हैं। ऐसे मौके पर मैच के आयोजकों ने बताया कि मैच की सभी टिकटें बिक गई और इस स्टेडियम की क्षमता 27,200 लोगों की है। एसोसिएशन के मीडिया कोऑर्डिनेटर मूर्ति ने बताया कि यदि बारिश हुई तो 20 मिनट तक मैदान को पुनः इस्तेमाल के योग्य बना दिया जा सकता है। अब भारत की केवल जीत की प्रतीक्षा है।